We have talked about all the important updated policy initiatives that should be there in your knowledge, where the question frame is likely possible. Every time whenever I talk about question, I insist that I'm not predicting any question, because whosoever claims that they are predicting the question, they are misguiding you. No one can predict the question. The best thing for us to prepare for competitive examination is to be prepared of every topic that is required to be prepared. Syllabus for prelims is not much defined. It simply reads physical geography, world and India, socio-economic development, environment ecology, biodiversity, climate change. Doesn't give much more insight to its syllabus. So we try to be as comprehensive as possible. And the base text with the reference of which we built out our content is NCERTs, because NCERT based questions have been the most consistent one in prelims examination. So proceeding further, before I start on with manufacturing, I just want to make a swift mention of Ministry of Power. Ministry of Power with Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power with NTPC, India as a major sulfur dioxide emitter, and sulfur dioxide principally coming from thermal power plant, we are aware of it. And NTPC's CDM approach in the air pollution abatement. So there have been multiple attempts that we have already taken to understand Ministry of Power and Ministry of New and Renewable Energy. But I have something important as the advisory, the Central Electricity Authority, and the updation that is related there. So we begin there, and then we'll quickly get on to interesting frame that will make us understand manufacturing sector, and then we'll get on to infrastructure. So on to my right. Of all the power related approaches, falls in the jurisdiction of it. And when I talk about Ministry of Power, it is incorporating construction, operation, when we take the reference of important constituent of Ministry of Power. So when it comes on to these principal role, construction, operation, generation and transmission of power, we take up Central Sector Power Corporation. And Central Sector Power Corporation, NTPC, you are aware of it. Remind yourself that whenever I talk about National Thermal Power Corporation, near 60% of commercial energy is coal-based. And when I take reference of NTPC as the largest power generator, you need to interpret that maximum of the thermal power plants in the country is coal-centric. And Coal India Limited के जितने आपने coal mines को associate करा है, most of them goes up with the thermal power plant. Then comes NHPC, Hydel Power Corporation. They are majorly with the production purview. PGCIL, Power Grid Corporation of India Limited. It is basically oriented towards transmission. You need to understand this. And I also have got NEEPCO. अब इसको decode करो तो it is Northeastern Electric Power Corporation. Northeastern Electric Power Corporation. And when I take up Northeastern Electric Power Corporation, you have to take the Electric Power Corporation, of course, in the Northeastern region. So NE stands for your Northeastern region. NEEPCO can be considered to be NTPC, NHPC and PGCIL for Northeastern region. क्योंकि आप इन दोनों को तो जनरेशन में डाल रहे हैं और इसको डाल रहे हैं आप ट्रांसमिशन में. So जब आप इन दोनों एक्टिविटीज को कंबाइन कर दो फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, you are taking it up as NEEPCO. So Ministry of Power के बारे में बात करें तो you can take up the reference of these central sector power corporations. Apart from it, when we talk about the other players that are correlated with it, so category A बना दो उसको, category B बनाएंगे. So this is joint venture that can incorporate the participation of concerned state government. So it is Satluj, Jal Vidyut. They are definitely being correlated with our maximum governance and less government. So you apply that. Apart from it, you are taking a range of statutory bodies. बहुत basic सा elementary information है जो आपके knowledge में होना चाहिए. Damodar Valley Corporation. Damodar Valley Corporation is the first multi-purpose river valley project. Damodar Valley Corporation incorporate 4 dams and reservoirs, and NCERT में एक छोटा सा case studies का हमेशा है. अपने river network को याद कर लेना. This is Damodar. It is merging up with Hooghly,
Hooghly is a distributary of Ganga and this is my river Damodar. जब आप दामोदर रिवर के या डीवीसी के बारे में बात करते हो तो आपको दो रिवर्स अपने रेडार पर और ले लेनी पड़ेगी और इन दोनों रिवर्स को पहले फटाफट से लेबल कर देते हैं. दिस इज रिवर बराकर एंड दिस इज रिवर कोनार. अब जल्दी से आंसर दे देना. रिवर बराकर एंड रिवर कोनार विल बी डैश बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर. जल्दी से बताओ. ये आपका हुगली है. Barakar and Konar will be dash bank tributaries of Damodar. Quick class. Left bank, shabash. And when I take reference of this left bank tributary, आपको जब DVC को याद रखना है तो बस सिंपल सा दो छोटा सा काम याद रखना. एक यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ और एक यहाँ with one here. DVC incorporate 4 dams and reservoirs. अब ये 4 dams and reservoirs में जो तिलैया डैम एंड रिजर्वोयर है, जो मैथन डैम एंड रिजर्वोयर है, ये गया बराकर पर. जो पंचेत डैम एंड रिजर्वोयर है दामोदर पर है और कोनार पर कोनार है. डीवीसी इनकॉर्पोरेट 4 डैम्स एंड रिजर्वोयर. इससे आसानी से इसको समझा नहीं जा सकता. तिलैया इनकॉर्पोरेट और तिलैया आइडेंटिफाई इट्स प्रेजेंस वेरी क्लियरली विद बराकर. बराकर पर 2 डैम रिजर्वोयर है, दामोदर पर सिर्फ एक है, इसका नाम है पंचेत. और कोनार मैप पे बहुत आराम से दिखता है. आपको इसको हैंड टू हैंड जस्टिफाई कर लेना चाहिए. व्हेन आई टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी बॉडीज, डीवीसी हमेशा एक कन्वेंशनल नाम है जो छूटना नहीं चाहिए. और अपार्ट फ्रॉम डीवीसी, व्हेन आई टॉक अबाउट अदर्स, so we have got the distinctive constituents that are identified. इसमें पार अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के साथ इसी को आप एसोसिएट करते हैं. तिलैया हैज गॉट 1 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट दैट इज बीन अप्लाइड देयर. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन REC is also correlated to statutory bodies. एंड पावर ट्रेडिंग, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करते हैं. तो आपकी नॉलेज में सिर्फ ये होना चाहिए दैट व्हेन वी टेक अप द रेफरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इट्स नॉट जस्ट NTPC and HPC. And when we take the reference of functioning of Ministry of Power, जिसके लिए हम इस particular conventional head को अपने radar पर लेकर चल रहे हैं, उसको जज करने के लिए जो मेरे पास important constituent है वो है central. So when we take reference of technical assistance that the ministry is being granted, it is Central Electricity Authority. यहीं पर हमें अपना enlargement लेना है. Before I take you to CEA, where we have some contemporary thing to be added, एक स्टार मार्क के साथ यहाँ ऐड कर देते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू विल रिकॉल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. NAPCC में एक मिशन मोड प्रोग्राम पढ़ा था हमने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के लिए. जल्दी से नाम बता दो कौन सा प्रोग्राम पढ़ा था. नेशनल एक्शन प्लान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. It correlates essentially to Bureau of Energy Efficiency as one of the mission mode program. Bureau of Energy Efficiency is taking care of that mission mode program. What is the nature of that mission mode program? I'm waiting for your answer. Quick. नाम में Bureau of Energy Efficiency बता रहा है. National Mission on Energy Efficiency CFL बताया था. Yes or no? Energy efficient houses बताए थे. जल्दी बताओ, hand raise करो. India incorporate the tag of the country that is not energy sufficient. And in spite of this problematic status that India is having, India also has a dubious status or the tag of the country that has got least energy efficiency. We are wasting energy. अब आप CEA का अपडेशन को जल्दी से ऐड कर लीजिए. I want to just get on to the part here. Are you giving me go ahead? Have you written this all? Please be comfortable and clear because statement based questions पूछ सकते हैं. We do have got statutory bodies that goes much beyond DVC. अपना मैप ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल को ओपन करके आप बहुत आराम से सारे डैम्स एंड रिजर्वोयर्स देख सकते हैं. And when I talk about Talaiya, it correlates with Koderma. Koderma जाता है Mica. Mica is one of the mineral resources that India is producing. Both the variety. चलो इसको यहाँ ऐड कर देते हैं. तिलैया के साथ आप दो चीजें अपने अपने दिमाग में ऐड कर लो. When you talk about तिलैया, एक तो आपने पढ़ लिया that it is DVC का एक डैम एंड रिजर्वोयर. दूसरी चीज आप पढ़ लो, it correlates with कोडरमा. जैसे कोडरमा की बात करते हैं, it comes out as mica. So India is one of the leading producers of mica in world.
माइका की दो वैरायटीज हम प्रोड्यूस करते हैं, एक को बोलते हैं मस्कोवोइट, कोडर्मा में मस्कोवोइट माइका है, और दूसरे को बोलते हैं बायोटाइट। बायोटाइट माइका जो है वो प्लेन्स के साथ एसोसिएट करती है, यंग कंस्ट्रक्ट के साथ एसोसिएट करती है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है नेल्लोर। याद करो, नेल्लोर लिखा था चिंगार गुंता गोल्ड के साथ, हैंड रेस कर दो। सो नेल्लोर में बायोटाइट है, कोडर्मा में मस्कोवाइट है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हो गया है। तलैया गोज विद अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ऑल्सो कोल बेस्ड। दामोदर वैली कोल को आप याद कर लो, वी टेक इनटू अकाउंट दामोदर वैली एज वन ऑफ द रिचेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन। सो तलैया के साथ आप ये सारे पॉइंटर्स आराम से ऐड कर सकते हैं। माइका में कोडर्मा इज द लीडिंग प्रोडक्शन साइट। Okay, so this is my Ministry of Power, and now I want to talk about the CEA, Central Electricity Authority, because National Electricity Plan का mention है. So I just want to quickly remove all this and creating the pointers and advising all of you to quickly copy it down with me as you always do, and then we can easily apply the updations and the factors that is correlated to it. So Central Electricity Authority, technically assisting Ministry of Power, have given us National Electricity, and this plan is for 2022 to 32. So 10-year plan हमारे पास है। 2022 से 32 का जो ये प्लान है, इस प्लान की जो शुरुआत हुई थी, that is NEP marked up its beginning, the first NEP in 2007. So when I talk about NEP, the National Electricity Plan, it basically is correlated towards recognizing the modifications that India has to take care of. So NEP जो रिलीज किया गया है, इसके जो की फैक्टर्स हैं, recall emission intensity reduction is applied to be associated very clearly to be at 24% of GDP. आप इसको एसोसिएट कर पा रहे हो अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से? ये वाला फैक्टर को आपने अपने दिमाग में रखना है। सो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज आप टारगेट कर रहे हैं, एंड इट इज बीइंग टारगेटेड टिल 2026। अब दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है, रिव्यू फैक्टर्स इन द लास्ट 5 years is been the base on the parameter of which we have been provided. NEP is being provided with, पहला है detailed plan for the following 5 years, so this is a detailed plan, and दूसरा है prospective plan. तो आप इसको सब डिवाइड कर सकते हो, और ये सब डिविजन पर भी एक स्टेटमेंट आपके पास आ सकता है, and you should be aware of it. So it goes 2022 to 27, and it goes 2027 से 32, ऐसे करके आप इसको डिवाइड करेंगे। RE कंट्रीब्यूशन का इंक्रीज अप टू 35% इज प्रोस्पेक्ट विद 2025-26, और हमें पता है दैट वी वांट टू इंक्रीज इट टू 45%, हमारा जो एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन का जो टारगेट है। So Central Electricity Authority have notified this electricity plan to build over the review that we have constructed. और ये review मुझे किस चीज का reminder दे रहा है? That India का biennial update report, which is submitted to United Nations Framework Convention on Climate Change, which talks about intended nationally determined contribution that correlates with energy efficiency, renewable energy, and net zero target. We are basically progressive towards that. So ये सारी चीजें एक आपके रेडार पर होना जरूरी है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना था इसमें, लेकिन इसको छोड़ना भी कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, because when I take reference of the study that is related to electricity power, तो कोल भी जानते हैं, NHPC, because we have learned all the river systems of our country, so it becomes easier for us to apply. So जो NEP का आपका 2022 से 35 है, वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। NEP always goes with 5-year plan. So detailed plan is for 5 year and prospective plan is for 5 year, and those 10 years, that is 2022 to 32, is being applied to be building over the review of the last year. This is the new thing that has been there with CEA, and this is what we have applied.
I'm proceeding further with your quick go ahead. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो इतने सारे सेक्टर हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे? उसको हैंडल करने का एक बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम इन द प्रेजेंट परव्यू वी हैव गॉट, and that is from the new initiative that has been mobilized by union government. तो उसका सपोर्ट लेते हैं, and that will give us the quick understanding and the coverage of the things clearly. So इसको आप बोलते हो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम. हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल इसी तरह से बताएंगे. और आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये कंटेम्प्ररी टॉपिक्स हैं, तो एनसीईआरटी में ये बहुत रेयरली मिलेगा. एनसीईआरटी में बेसिक मिनिमल प्रोडक्शन एरिया कहां पर है वो मिल सकता है, उसमें भी ट्रिमेंडस मॉडिफिकेशन है. So these are contemporary topics. It's always advisable that if you are attempting it for the upcoming, तो हम updation दे रहे हैं. But when you are taking it up as subsequent years, you need to always attempt an updation of it. And the updation should be with such type of support. So beginning with manufacturing sector and the support that we give ourselves in manufacturing sector, because manufacturing sector को अगर आप conventionally divide करो, बहुत conventionally divide करो, to categorize them into agro-based industry, you categorize them into chemical-based industry, you categorize them into metal-based industry. Normally हम इसी category में इसको divide करते हैं. But now the things don't go in that facilitative edge. So we are aware of some of them, and we need to make ourselves most of the manufacturing sector. Ministry of Food Processing Industries हम पढ़ चुके हैं, तो हमें क्या करना है? हमें सपोर्ट ले लेना है. अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो तो आप एक इंपॉर्टेंट डिमार्केशन जस्टिफाई करते हैं. इंसेंटिव्स आर लिंक्ड. अब जब आप कहते हो इट इज अ स्पेशल इंसेंटिव स्कीम, सो व्हाट मेक्स इट स्पेशल? इट इज स्पेशल बिकॉज इंसेंटिव्स आर लिंक्ड टू एंड इनोवेशन. इनोवेशन के बारे में हमने आपको बताया था, एक बार हिंट दिया था जब हम डेमोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, that until unless we think outside the box, creating gainful job to the surplus job seekers will be a difficult task. So that is what we are taking. And increasing self-reliance in inputs, processing. जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं ना, तो बैकवर्ड लिंक आता है, all the raw material, technology, money, every other thing. And then inside is the processing capacity. So that is what we take as self-reliance. And when I take up the reference of PIL scheme का जो special incentive scheme है, इसके मेरे को बहुत defined तरीके से 4 benefits justify हो. इससे आसान तरीके से आप PLI को समझना मुश्किल है. तो benefit number 1 by default it will be strengthening. अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट को लेकर चलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. Increasing export, because when I'm taking self-reliant self-production, so automatically there will be the factor of cost cutting, and that is going to give us the factor of the demarcation. There will be increase in capital expenditure, क्योंकि जब आप justify करते हो development of manufacturing capacity, and the most important, so let me put it up with a star mark, there is the green investment increase. Manufacturing sector in the present day perspective is identified essentially with these important pointers, as it is linked to the performance. So you have to perform, you have to mark up increase in your sale, and that is how you are getting the objectives of benefits that you have to mobilize. And when I talk about production linked intensive incentive scheme, I have to take into reference the sectors, and that will give me the key to proceed further with my study. The sectors under PLI includes manufacturing में ले रहे हो तो food products का सीधा सीधा logic हो गया, Ministry of Food Processing Industries. We are done with it. Hand raise कर दो. When I talk about food products and Ministry of Food Processing Industry, you know primary processing, you know secondary processing, you know mega food park scheme, we are already done with it. It goes with the textile. It will give me the links to proceed further with my study. It correlates with, when I talk about pharmaceuticals, I'm talking about pharma API, I'm talking about drugs, everything. It goes up with auto and
ऑटो कंपोनेंट्स, ये मेरे प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं विच इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम ऑफ न्यू पॉलिसी प्रोग्राम्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. So we are done with food products, we are not done with maximum of them. ऑटो कंपोनेंट्स ले लिया तो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल की कैटेगरी में आ गए. जैसे ही आप कंज्यूमर ड्यूरेबल की कैटेगरी में आते हो, you have got a category recognized as white goods. इसका भी एक क्विक मेंशन ले लेंगे. And after that you are having the segments that are related to something which will be learning more towards service sector. So I'll list it here like this: mobile component, drones, drone components, medical devices component, ACC battery component, telecom networking component, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT हार्डवेयर. इनको आप किस में ले जा सकते हो? इनको आप ले जाओ सर्विस सेक्टर में, ये मुझे लिंकअप कर देगा. और इसको आप लेकर जा रहे हो hardcore manufacturing. I do have got that correlated with the renewables like solar PV is also been included. So आप इसी के साथ लिख लो ACC battery and solar. Sectors that we have to take as my support to proceed further with our study is giving me categories of 1 textile, 2 pharmaceutical, 3 steel, 4 auto component, 5 white goods and decreasing order. माने मेरे को अगर कंटेंट बिल्ड करना है तो मुझे सबसे कम कंटेंट मिलेगा व्हाइट गुड्स की तरफ. व्हाइट एंड ब्राउन गुड्स को आप कंपेयर कर लोगे एंड दैट विल गिव यू द बेनिफिट. और मोबाइल कंपोनेंट एंड टेलीकॉम विल बी लर्निंग विद सर्विस सेक्टर, सो इट विल बी कमिंग अप देयर. I'll mention all these now as our beginning: textile, pharmaceutical, specialty, auto component, white. I think I can proceed. This is your support to your manufacturing. क्योंकि सबका एक अलग अलग पॉइंटर्स है, उन पॉइंटर्स को हमने अपने रेफरेंस में रखना है. So food products with Ministry of Food Processing Industries done. So I automatically get the beginning with the textile. जब आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हो तो फूड प्रोसेसिंग के अलावा शुगर में आपको बता दिया था एथनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम. एंड देन टेक्सटाइल कम्स अप एज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट. टेक्सटाइल सेक्टर का अगर एक कन्वेंशनल डिमार्केशन लेंगे, आई यूज दिस पार्ट. टेक्सटाइल सेगमेंट का अगर हम एक बहुत कन्वेंशनल सा डिमार्केशन ले लें तो इट विल गिव मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल इंडियन टेक्सटाइल. अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर विद द कन्वेंशनल डिमार्केशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है. इट हैज गॉट पैन इंडियन एग्जिस्टेंस. सो गोज विद सिल्क टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल का जो डिमार्केशन लेते हैं वो हम पैन इंडियन लेते हैं बिकॉज इट मेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री. फुटलूज इंडस्ट्रीज वो लूज इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल या मार्केट दोनों ओरिएंटेशन पर चली जाए. क्योंकि या तो आप कॉटन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कॉटन यार्न, कॉटन थ्रेड, कॉटन टेक्सटाइल किसी को भी ट्रांसपोर्ट करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी मोर और लेस द सेम. रीजन, मोर आई प्रोसेस इट द वॉल्यूम इंक्रीजेस, वेट तो वही रहेगा. प्रोसेस्ड में जहां पर आप एसेसरीज ऐड कर देते हो, जिप्स, बटन्स एक्सेट्रा, वहां पर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन के साथ वेट गेन होता है. अदरवाइज कॉटन आपको महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में तो मेजर कंसंट्रेशन दिखाई देगा, बट वो श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी से लेकर जोधपुर पूरा पैन इंडियन डोमेन में मिलता है. And when I take up the reference of cotton as king fiber with pan Indian purview, I easily apply it. It's a footloose industry. जब आप गोल्डन फाइबर जूट की बात करते हैं तो जूट has got its concentration in deltaic region. क्योंकि जूट का जो प्रोडक्शन एरिया है वो एब्सोल्युटली सेम एज राइस है, तो माने ये बिल्कुल रॉ मटेरियल ओरिएंटेड है. और जैसे ही हम इस रॉ मटेरियल ओरिएंटेड गोल्डन फाइबर की बात करते हैं, 90% से ज्यादा कैपेसिटी हुगली रिवर बेल्ट में कन्फाइंड है, तो मुझे हुगली रिवर बेल्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. ये तो पैन इंडियन लिख दिया आपको. पैन इंडियन इसलिए क्योंकि ये फुटलूज है. जब आप सिल्क टेक्सटाइल की बात करते हो तो दैट ऑल्सो कम्स अप एज फुटलूज, बट इसका फुटलूज होने का रीजन जो है वो कॉटन टेक्सटाइल से बिल्कुल अलग है. एंड उसके पीछे जो रीजन है वो ये है,
that India is producing मलबरी सिल्क। हमारे कंट्री में 5 कमर्शियल वैरायटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस होते हैं, जिसको जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड which functions under Ministry of Textile for sure, recognizes these as one-year silk, 1 year that is related to forest. Mulberry silk is the only silk that is produced in the leading producing countries of silk in world. China hai, Japan hai, Indonesia hai, Egypt hai. India has got 5 commercial variety. So because it is footloose, because it is like king fiber, na. It is footloose because it is correlated excellently with multiple varieties that we are taking. And जब आप वुलन की बात करते हो तो वुलन we are, please recall, livestock census. याद आ रहा है, बताया था नॉन अपैरल ग्रेड, हैंड रेज कर दो. India is the example of the country which is neither a very good market for woolen textile, nor it is identified to be a good producer of apparel grade wool. पश्मीना वूल को छोड़कर हमारे जो शीप हैं वो नॉन अपैरल ग्रेड वूल दे रहे हैं, जो लार्जली जाता है कारपेट वीविंग में. इसलिए वुलन टेक्सटाइल को हम एक मेजर टेक्सटाइल सेक्टर के तौर पर नहीं मानते. आप इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ले रहे हो तो आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर या जिसको आर्ट सिल्क बोलते हैं वो आप इंक्लूड नहीं करते. सो टेक्सटाइल में आपने एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया जिसमें सिल्क एंड कॉटन हैज गॉट पैन इंडियन पर्सपेक्टिव, एंड जूट के साथ जो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड डायमेंशन. इसके बाद अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होलसम फैक्टर पर लेना है तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो मिल सेक्टर है मेजरली. अब टेक्सटाइल सेक्टर के कौन से सेक्टर होते हैं? एक होता है पावर लूम, एक होता है हैंड लूम और एक होता है मिल सेक्टर. मतलब आपका जो प्रोडक्शन पर व्यू है टेक्सटाइल का वो ये 3 में हो सकता है. अगर पावर लूम है तो मैनुअल लेबर हो गया, बिल्कुल कम. हैंड लूम है तो वो सेंट% मैनुअल लेबर बेस्ड है. मिल सेक्टर है तो ये मिक्स पर है. तो आप जब कहते हो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, सो इंडिया डोंट वांट द टेक्सटाइल सेक्टर टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम मिल टू पावर लूम. ये दूसरी बात है दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट, बट हम कर ही नहीं सकते, इसको करना ही नहीं चाहते, टारगेट नहीं करते, बिकॉज इट विल बी कटिंग डाउन ऑन जॉब. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट क्लास? हैंडलूम अपने आप में एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, हमारा ये मिल सेक्टर है, इसलिए वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है. तो ये आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स अपने दिमाग में रखना है. दूसरा रखना है आपको जो बताया हमने, जो PLI है वो मैन मेड फाइबर पर अप्लाई करा गया सिंस द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. MMF कंबाइंड विद टेक्निकल फाइबर. तो ये आपको अपनी इंफॉर्मेशन लिस्ट पर ऐड कर देना चाहिए. मैनमेड फाइबर में सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन, नाइलॉन, and technical fiber which is basically correlated with large spectrum of space, medical and etc. domains. So we are now taking that also into our reference. So MFF and technical textile global champions के साथ associate करने के लिए mobilize किया गया last financial year. So this is a new thing. And when I take reference of, ये list तो आपने copy कर ही ली है, हम इसमें जो जो important pointers है वो आपको बताते जाएंगे. When I take reference of textile in the beyond MFF category, so this है type करके बता दो. 5Fs आपने पहले भी पढ़ा है, किस सेक्टर के साथ पढ़ा है, जल्दी बताओ. 5Fs have been studied earlier also with which sector? Social, forestry. Very good, Rohit. Proud of you. When I take reference of 5Fs of PM Mitra, it actually goes with FAR. Because हमने लिख दिया ना PM Mitra, तो PM Mitra उसके साथ इंटीग्रेट हो गया, जो हमने SITP मोबिलाइज किया है. SITP, Scheme for Integrated Textile Park, that has been integrated with PM Mitra. And SITP में we are having some 56 SITPs already functioning. इसमें आपने इंक्लूड कर दिया है 7 अपैरल पार्क्स ऑफ PM. हैंड रेस करो, जल्दी से समझा रहे हैं, समझो इसको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं. We will be taking up the next segment into our study. The second largest employer in the country after agriculture, textile definitely has been given very high priority in the PLI scheme of India. Textile sector have always been into the radar of central planning because it correlates itself with the agro-based industries. And can all of us recall
that we have learned National Food Security Mission cash crop under Krishi Unnati Yojana, which incorporated cotton, which incorporated jute, and which incorporated sugar. जिसमें हमने केन का तो स्टडी, आई एम राइटिंग शुगर केन कंप्लीटली, जिसमें हमने केन का स्टडी तो ले लिया, अब कॉटन और जूट के स्टडी को ओपन कर दो. I am producing cotton, definitely not as a subsistence crop, it's a cash crop, and so goes with the jute. तो कोई भी फार्मर अगर जूट और कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसलिए कर रहा है दैट इट शुड बी सोल्ड टू द मिल्स फॉर द फर्दर यूटिलिटी. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अंडर कृषि उन्नति योजना कैश क्रॉप is aiming at ensuring that there is uninterrupted supply of jute and cotton to the mills, so to ensure the remunerative earning of the farmers. And when I talk about the textile sector planning, it is like we need to have the development of the capacity that will be cost competitive to sustain its marketing link. So it is inclusive of the most vulnerable category of our population, farmers. इसलिए इसको high priority दिया गया. When I talk about the new factors that has been incorporated under PLI, तो man-made fiber और technical fiber को आपने जगह दी, और जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल पॉलिसी का डोमेन है उसमें आपने पीएम मित्रा को ऐड कर दिया. मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क इज ऑल लाइकली टू इवेंचुअली सबज्यूम SITPs with it. But PM Mitra, which is incorporating farm, fiber, factory, fashion, and foreign as 5Fs, is being applied with foreign market capturing, जो कि आपका PLI का तो मेजर इंसेंटिव है ना, that I need to mobilize on us as the global champions in production and export. And when I talk about the conventional textile policy or उसके domain, it very clearly goes with AUTFS, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम की शुरुआत तो 1999 में ही हो गई थी. इसको अब आप कहते हो एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम. ये अपग्रेडेशन इसलिए है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है इन द टेक्सटाइल मिल्स दैट वी कैन ओवरकम. सो इट इज होलसम फॉर ऑल टेक्सटाइल. तो जब आप बात कर रहे हो पीएम मित्रा की, SITP की या ATUFS की, दे आर फॉर ऑल टेक्सटाइल सेक्टर. एंड नाउ व्हेन आई कम टू जूट आई केयर, it is reading that we are talking about jute sector only. What exactly it is oriented towards? Jute has been designated as most versatile fiber. माने जूट की यूटिलिटी इतनी ज्यादा है जहां पर आप बाकी टेक्सटाइल को एकदम स्टॉप कर दो, इवन थिंकिंग अबाउट इट्स यूज. जूट हैज गॉट वेरी वर्सेटाइल कैरेक्टरिस्टिक. तो ये आपका वियरिंग अपैरल में तो आएगा ही, जहां कॉटन और सिल्क का डोमेन है, उसके बाद आप आगे नहीं ले जाते हो. उसके बाद आप ले जाते हो फर्निशिंग में. वी से फर्निशिंग में भी कुछ हद तक कॉटन और सिल्क का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके बाद आता है पैकेजिंग, उसके बाद आता है कैनाल मेंटेनेंस, उसके बाद आता है सेल्यूलोजिक रॉ मटेरियल फॉर पेपर प्रोडक्शन. आर यू गेटिंग इट? कंस्ट्रक्शन साइट में इस्तेमाल होना जूट का. जूट का जो एक रेंज ऑफ यूटिलिटी है वो मुझे सिल्क और कॉटन में नहीं मिलता. दैट इज द रीजन इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज जियो टेक्सटाइल, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज फाइबर ऑफ द मिलेनियम एंड गोल्डन फाइबर. और जब आप इस गोल्डन फाइबर के वैल्यू की बात करते हो तो वी वांट टू एनकरेज द फार्मर्स टू प्रोड्यूस इट, एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग इट दे मस्ट बी हैविंग द अर्निंग, नो से मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर्स अर्निंग, डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर. वो आप जब तक नहीं करोगे तब तक फार्मर्स जूट कल्टीवेशन के लिए इतने अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जूट का वही वाला हाल है जो हाल हमने समझा था सेगमेंट रिलेटेड टू कोर्स ग्रेन, कि जब तक आप अर्निंग इंश्योर नहीं करोगे इट इज नॉट गोइंग टू डन. सो जूट आई केयर इज बेसिकली अ होलसम प्रोग्राम that aims at encouraging farmers to cultivate jute and mill owners to process jute with the multiple variations covering up all these tasks. JNP, the Jawaharlal Nehru Port, one of the 30 largest container terminals of the world, we'll talk about that, have completed the pilot project which says jute can be a supplement to package the cargo for wood, and wood we all know have got the environmental cost. आप सबने वाटर रिसोर्सेस पढ़ा, आपने वाटर रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा.
Canals have got water use efficiency of 30 to 40%. Reason, canal में percolational loss and evaporational loss होता है. वाटर यूज एफिशिएंसी कम होने का दूसरा रीजन है कनाल मेंटेनेंस, जिसका कॉस्ट बहुत हाई है. रॉ प्रोसेस जूट की शीट्स को अगर हम कनाल के बेड्स पर ले डाउन करेंगे, बायोडिग्रेडेबल है, सॉइल का कोई नुकसान नहीं करेगा, percolational loss को रिस्ट्रिक्ट करेगा. On the banks of the canal, if you put it, again biodegradable है, it will be restricting siltation, and जो annual maintenance cost है उसको आप कम करोगे. That is the reason canal maintenance में जूट का बहुत massive utilization है, and that is the reason the countries like Brazil is never, Latin American countries have never been into the production of vegetable fiber. Southeast Asian countries still were producing vegetable fiber, जैसा केनाफ. साउथ ईस्ट एशिया में जो वेजिटेबल फाइबर कल्टीवेट होता है उसका नाम है केनाफ. पर जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पर किसी भी तरह का कोई भी वेजिटेबल फाइबर कभी भी कल्टीवेट किया ही नहीं गया. और आज की डेट में अगर आप देखो तो थाईलैंड इज एन एग्रेसिव प्लेयर ओरिएंटेड टुवर्ड्स जूट प्रोसेसिंग. और ब्राजील कहां पर कर रहा है? जल्दी से मैप ओपन करना अपना. ब्राजील जो है वो इदी मर जाओ. ब्राजीलियन पीपल क्लेम इट टू बी द लार्जेस्ट आइलैंड, रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. ब्राजील में ये एरिया डिमार्केट करता है द टेरिटरी दैट इज रिलेटेड टू अमेजन रिवर एंड टोकनतेनेस रिवर. आपने मैप ओपन कर लिया? हमने भी जल्दी से आपके लिए ओपन कर दिया, बता दे रहे हैं, ध्यान से देखो. ये कौन सी रिवर आ रही है? दिस इज रिवर अमेजोन. अमेजोन रिवर का एस्चुराइन डेल्टा है. आपको ये हम समझा चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी. और ये कौन सी रिवर आ रही है? इस रिवर का नाम है टोकनतेनेस. आपको आपके मैप में दिख रहा होगा. इन दोनों रिवर के माउथ, दोनों रिवर का एस्चुराइन माउथ है. ये जो बीच में आपको ये रफ ट्रायंगुलर पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं इदी मर जाओ. दिख गया? अगर ब्राजीलियन पीपल ये प्रूव कर दें कि ये आइलैंड है तो ये माजुली से तो बड़ा है, कोई डिनाइल नहीं. माजुली इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. ब्राजीलियन पीपल क्लेम दैट नो इट इज इदी मर जाओ. हम सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहे हैं ब्राजील से कि ये मुझे एक आइलैंड ना दिखकर एक पेनिनसुला दिखाई देता है. डू ऑल ऑफ यू अग्री? अगर आप ये प्रूफ कर दो कि ये एक आइलैंड है तब तो ये माजुली से बड़ा है. तो इदी मर जाओ इज द एरिया वेयर द जूट कल्टीवेशन हैव बीन मोबिलाइज्ड बाय ब्राजील. और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में कभी भी किसी भी तरह का वेजिटेबल फाइबर का कल्टीवेशन किया नहीं गया. तो जूट के लिए जो इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेनिफिट है वो तो आज की डेट में दो ही कंट्रीज के पास में है, एक इंडिया और दूसरा बांग्लादेश. यही दोनों कंट्रीज हैं जो पूरा का पूरा जूट प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग कर रही हैं वर्ल्ड में. और आज की डेट में इंडिया इज हैविंग एज ओवर बांग्लादेश बिकॉज ऑफ आवर जूट प्रोसेसिंग कैपेसिटी. वी जस्ट वांट टू ऐड गेन ऑन दैट. सो वो जूट आई केयर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कैश क्रॉप के जूट कंपोनेंट के साथ भी एसोसिएट. आपको बताया सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इनकॉर्पोरेट 5 कमर्शियल वैरायटी. वी आर सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना. एंड व्हेन इट कम्स टू द रेफरेंस ऑफ सिल्क टेक्सटाइल, हमारे पास एज है. और इसमें जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनका बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं वन्य सिल्क जिसमें ईरी मुगा तो नॉर्थ ईस्ट में ही जाता है, और ट्रॉपिकल एंड ओक टसर तो आप पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर हार्टलैंड है, जो प्लेट्यू रीजन है इंडिया का, वहां पर अप्लाई करते हो. सो व्हेन यू ट्राई टू टेक अप दिस सिल्क समग्र, वी वांट टू मेक सिल्क व्हिच इज अ टैग अपार्ट टेक्सटाइल. आप सब अग्री करोगे कि सिल्क इज बेसिकली कोरिलेटेड विद दैट ब्रांड व्हिच डजंट कम अप एज अ चीप ब्रांड, because it is a very long integrated chain that is incorporating too much of labor, and that reflects in its price. So it is important for us to create out a separation. It is called grade and weave separation that has been applied. So आप जज करें कि सिल्क समग्र के जो 4 पॉइंटर्स आपके सामने बताएं, इनका लॉजिक क्या है. कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो हम लिख देंगे. तो आसान से शुरू करते हैं. जो लास्ट पॉइंटर आपको लिखकर बताया है वो है आई वांट टू इनकॉर्पोरेट बायोटेक्नोलॉजी फॉर सिल्क सीड. इसका मतलब क्या है? एक कन्वेंशनल कुकून पर बेस्ड हम सिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं,
इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट मुझे 4 से 5 यील्ड फैसिलिटेट कर सकता है। चाइना का क्लाइमेट इंडिया से कंपैरेटिवली कोल्डर है। चाइना भी साल में 2 सिल्क प्रोड्यूस ले रहा है, इंडिया भी 2 ही ले रहा है। तो इंडिया को बेनिफिट क्या हुआ उसके क्लाइमेट का? इंडिया कैन प्रोड्यूस 4 to 5 टाइम्स सिल्क फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चरल फील्ड। तो बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज करके आप आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेगमेंट बढ़ा सकते हो। हैंड रेज कर दो। So we want to work there as Silk Samagra. Silk Samagra में BT और of silk seed का सीधा मतलब है increasing the frequency of silk production from agricultural sector. ठीक है? अच्छा, उससे पहले लिखा है silk waste. Silk waste कहाँ डेवलप होता है? Silk waste डेवलप होता है रीलिंग सेगमेंट में। जब आप सिल्क यार्न से सिल्क थ्रेड बनाते हो उस समय में इट्स कॉल्ड रीलिंग लेवल, जहां पर आप सिल्क थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। रीलिंग लेवल में एक सिल्क का जो बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है उसको आप आज तक सिल्क वेस्ट बोलते हो। एंड कंट्रीज जो कन्वेंशनल सिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे चाइना है, जैसे जापान है, जैसे इंडोनेशिया है, वो जब रील करके ये सिल्क वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को बाई प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इस बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहां कहां पर है, ध्यान से देखना। सबसे पहला है सिल्क ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में, विच कैन बी इनपुट टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरी आइटम्स, सोप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत सारा। और उसके बाद जो एकदम कोर्स हस्क बचता है, क्योंकि जब आपने सिल्क ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया तो बिल्कुल कोर्सर सा रेजिड्यू बचेगा, उसको आप पोल्ट्री और एक्वाकल्चर फीड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। आप नोटिस कर रहे हो क्लास, हम हैं एग्जाम्पल उस कंट्री के जो कन्वेंशनली सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब टाइम फ्रॉम द कल्चरल पास्ट, और आज तक हम इतने प्राइज्ड एसेट को वेस्ट की तरह सिर्फ एक लैंडफिल, रीजेनरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि बायो वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल है, सीधा एक लैंडफिल की तरह इस्तेमाल करके हमने इसको वेस्ट की तरह यूज किया है। अगर हम इसका सिर्फ ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड मोबिलाइजेशन इन पोल्ट्री एंड एक्वाकल्चरल फीड में मोबिलाइज करेंगे तो कितना इनकम रिफ्लेक्ट बैक करेगा टू द सिल्क कल्टिवेटर्स एंड द सिल्क वीवर्स। आर यू मेकिंग सेंस विद दैट? तो सिल्क समग्र टॉक्स अबाउट दैट। ये दोनों चीजें लार्जली हिडन रहती हैं। उसके अलावा जो चीजें हैं वो काफी पॉपुलर हैं, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। सिल्क मार्क थोड़ा सा कन्वेंशनल है, वहां से शुरुआत करते हैं। सिल्क मार्क स्कीम का इस्तेमाल हुआ था ग्रेड सेपरेशन। अब ग्रेड सेपरेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो भी ऑथेंटिक सिल्क है उसको सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक सिल्क मार्क प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, ये मार्केट में ग्रेड सेपरेट कर देता है। मान लीजिए मैं पहनना चाहती हूँ सिल्क, आप पहनना चाहते हो सिल्क, बट हमारा पॉकेट ही अलाउ नहीं करता क्योंकि सिल्क आता है हाई प्राइस टैग के साथ। तो आई हैव टेकन एज ए कंज्यूमर, आई हैव टेकन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आई वांट टू वियर सिल्क बट बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू, सो आई टेक दी व्हाट इज कॉल्ड आर्ट सिल्क, माने फेक सिल्क, सिंथेटिक फाइबर, जो एक फर्स्ट लुक में या अननोन इंडिविजुअल को आपको हमको लगेगा सिल्की है। तो आपने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया, वो आपका इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, बट एज अ कंज्यूमर आई एम पेइंग फॉर सिल्क एंड आई एम बीइंग सोल्ड आर्ट सिल्क। तो आर्ट सिल्क अगर, या जो फेक सिल्क है, या जो सिंथेटिक फाइबर है, या जो सिल्क लुक अलाइक है, उसको अगर हमने प्योर सिल्क के साथ कंपटीशन पर छोड़ दिया तो आपको पता है कि इस कंपटीशन में सिल्क ही डाई आउट करेगा। एग्री करो, क्योंकि सिल्क का प्राइस टैग इतना ज्यादा है कि वो आर्ट सिल्क से कंपीट कर ही नहीं पाएगा। और क्या ये कंपटीशन एथिकल है? इट इज किलिंग द इंटरेस्ट ऑफ द सिल्क प्रोड्यूसर्स एंड वीवर। तो सिल्क मार्क का सीधा लॉजिक है कि मार्केट में ग्रेड सेपरेशन हो जाए। इसके साथ सिल्क मार्क है तो ये ऑथेंटिक सिल्क है, इसका ये ऑथेंटिक प्राइस है, आप पे करना चाहते हो आप लो, नहीं तो मत लो। और जो दूसरे हैं सिल्क लुक अलाइक, सिंथेटिक फाइबर, वो आप लीजिए क्योंकि आपको कम प्राइस में चाहिए। तो दिस इज बेसिकली टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर। ये काम शुरू किया सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने ग्रेड सेपरेशन के लिए। यहां तक समझ में आया तो हैंड रेस करो। अब जीआई टैग बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट बनाता है, आप सबको पता है जीआई टैग क्या है। यहां पर आप किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो? जीआई टैग में आप सपोर्ट कर रहे हो
ये सब है जहां आर्टिजन्स हैव इंड्यूस्ड जेनरेशंस टू डेवलप अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीव। तो आपने डम्प सिल्क ले लिया, चाइना से डम्प सिल्क आया, आपके पास वीविंग कैपेसिटी, आप फेक चांदेरी बेच रहे हैं। तो जो चांदेरी वीवर्स है मध्य प्रदेश के, उनका इंटरेस्ट हो गया खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर जीआई टैग इज सिल्क वर्सेस सिल्क, सिल्क मार्क इज सिल्क वर्सेस फेक सिल्क, ये डिफरेंस है। और जो जो जीआई टैग में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हो गए वो है चांदेरी ऑफ मध्य प्रदेश, पोचमपल्ली ऑफ आंध्रा, बालूचरी गोज विद वेस्ट बंगाल, इकत गोज विद ओडिशा, कांजीवरम गोज विद तमिलनाडु, ईरी इज विद असम, पटोला इज विद गुजरात, बेनारसी इज विद उत्तर प्रदेश, भागलपुरी इज विद बिहार, पाइथानी इज विद महाराष्ट्र, एंड Mysore is with Karnataka. Mysore silk, one of the very popular brand. कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, ये एग्जांपल्स मुझे क्या बता रहा है भाई? पैन इंडियन है सिल्क, हमने आपको बताया सिल्क इज पैन इंडियन। ईरी मुगा जो है, ये दोनों वैरायटी जाता है नॉर्थ ईस्ट में। आपको बात समझ में आ रही है? और जब आप नॉर्थ ईस्ट टेक्सटाइल प्रमोशन की बात कर रहे हो तो आप हर फाइबर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में याद करो नागा शॉल बड़ा पॉपुलर है। अभी आपको बताया ईरी मुगा सिल्क है। गुवाहाटी इज कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग रीजन। तो कुछ भी हो, वो जूट टेक्सटाइल है, वो कॉटन टेक्सटाइल है, वो सिल्क टेक्सटाइल है, वो वुलन टेक्सटाइल है, नॉर्थ ईस्ट टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑल फाइबर मोबिलाइजेशन। This is your textile priority given segment in the PLI, जिसको हमने अपना सपोर्ट बनाया है टू लर्न मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको समझ में आ गया तो हमें गो अहेड दे दीजिए। आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तभी पॉलिसीज याद रहेंगी। सिल्क, समग्र, जूटाई केयर, NER, टेक्सटाइल प्रमोशन। तो दो हो गया सेक्टर स्पेसिफिक, एक हो गया रीजन स्पेसिफिक। उसके बाद जब आप ATUFS या PM मित्रा की बात कर रहे हो तो ये कोई सेक्टर या कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है, सब टेक्सटाइल के लिए अप्लाइड है, काम खत्म। जब PLI के बारे में बात करते हो टेक्सटाइल के लिए एक नए डायमेंशन पर, तो MMF मैन मेड फाइबर एंड TF टेक्निकल फाइबर आर बीन इंक्लूडेड। मेरे ख्याल से पॉइंट डन हो गया, गो अहेड दे दो। ये हुआ आपका सेगमेंट 1, जिसको हमने टेक्सटाइल सेलेक्ट किया था कि सब चलो चलो सबसे पहले हम टेक्सटाइल को जज कर लेंगे। टेक्सटाइल को पहले लेने का रीजन भी है, हम एग्रीकल्चर पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं। टेक्सटाइल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सो आई गेट अ कंप्लीट वर्जन ऑफ इट। चलो अब क्या करते हैं, जल्दी से अपना दूसरा PLI मैन्युफैक्चरिंग में ऐड करते हैं जो प्रायोरिटी सेगमेंट में इंक्लूडेड है, एंड दैट इज सो हमें फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड किस लिए कहा जाता है? हमारा रैंक टॉप तो नहीं है, इसलिए कहा जाता है बिकॉज वी आर द मोस्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। हमारा जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन है, हाईएस्ट क्वालिटी मेडिसिन एट द मोस्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव पर भी, दैट इज द रीजन वी टेक आवर टैग ऑफ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। तो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड की जो स्टेटस है उसकी शुरुआत को आप जज कर सकते हो with very simple point, फार्मा पॉलिसीज। इंडिया की जो फार्मा पॉलिसीज रही हैं उन पॉलिसीज को आप अगर सीक्वेंशियली जज करो तो 1978 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डोमेन एक बड़ा सा लीप लेकर पहुंच गए 2002 में, प्राइवेट पार्टिसिपेशन लीडिंग टू फार्मा रेवोल्यूशन। जो हमने आपको बताया ना, रेवोल्यूशन को अपने दिमाग में रखना है। वहां से 10 साल का लीप ले लो, 2012 रेवोल्यूशन हॉल्टेड, एकदम हॉल्ट कर दिया हमने रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन को हॉल्ट करने के पीछे क्या रीजन था वो समझा रहे हैं। और उसके बाद आप आ जाओ फार्मा पॉलिसी 2017, द कंटेम्प्रेरी फार्मा पॉलिसी दैट इज बीन कोरिलेटेड विद द PIL इनिशिएटिव, उसके बारे में भी बात करते हैं। जब PSC डोमेन की बात करते हो तो ऑफ कोर्स यू शुड बी अवेयर ऑफ एटलीस्ट 2 नेम, एक IDPL है और एक HAL है। IDPL इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड HAL इज हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कहे जाते थे, आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में जब आप इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करते हो तो यू टॉक अबाउट बायोकॉन, यू टॉक अबाउट डाबर,
you talk about Orchid Chemicals, you talk about Matrix Lab. मतलब आप जितने भी प्राइवेट नाम लेना चाहते हो आप उनको ले सकते हो. रनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, यू कैन कीप ऑन एडिंग देम. सो आज की डेट में तो डेफिनेटली इट इज प्राइवेट, एंड आज की डेट मतलब वी आर टेकिंग इट अप फ्रॉम 2002. 2017 को जज करने से पहले एक कॉलम क्रिएट करके आपको समझाते हैं, उसको बहुत ध्यान से विजुअलाइज कर लेना. आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो जिस्ट है वो क्लियर हो जाएगा, एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. So it is 2002 versus 2012. India made multiple stride under the public sector domain. Indian Drugs and Pharmaceutical Limited and Hindustan Antibiotic Limited. इनके डोमेन में इंडिया ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में काफी अच्छा काम किया. फार्मास्यूटिकल सेक्टर के मोबिलाइजेशन में इंडिया हैड अ स्लो पेस डेवलपमेंट इन द बल्क ड्रग्स एंड द फॉर्मुलेशंस डन इन द कंट्री एक्सेट्रा. Come in 2002, there was the requirement of ensuring affordable availability of the medicines to the growing population. So in order to trigger private participation and successfully triggering it as pharmaceutical revolution, 2002 pharmaceutical policy ने क्या-क्या काम किया? एक तो दिया बेस्ड प्राइसिंग. क्या होता है? मुझे कोई भी चीज प्रोड्यूस करने में 2 रुपए पर यूनिट लगा, मैंने अपना प्रॉफिट ऐड लिया, हम उसको 5 रुपए पर यूनिट में बेचेंगे. ये एक कन्वेंशनल वे है ऑफ डेवलपिंग द प्राइस. हैंड रेस कर दो, समझ में आ गया था. सिंगल विंडो प्रोडक्ट पेटेंट अप टू 20 साल देते थे हम, और कन्वेंशनल प्राइसिंग का मैकेनिज्म को खत्म कर दिया था. माने प्राइवेट प्लेयर को खुला हाथ दे दिया था कि आप जो भी प्राइस अपने मेडिसिन का डिसाइड करना चाहो करो, और आपको 20 साल का प्रोडक्ट पेटेंट मिल रहा है. तो ऑटोमेटिकली इट वाज लाइक अ बूमिंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर, एकदम फार्मास्यूटिकल रेवोल्यूशन, जहां पब्लिक सेक्टर प्लेयर का रोल कम होता चला गया और प्राइवेट सेक्टर का डोमेन हो गया. आज की डेट में तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज प्राइवेट सेक्टर. जो पब्लिक सेक्टर है उनका तो एकदम बेसिक मिनिमल प्रेजेंस आप जस्टिफाई कर सकते हो. वी डोंट हैव इट. अच्छा, टेक 10 ईयर लीप एंड यू सी द चेंज. जो आपने प्रोडक्ट प्रोग्रेसिव पेटेंट दिया, उसको इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत कंपल्सरी लाइसेंस, सुना है? कंपल्सरी लाइसेंस का मोबिलिटी दे दिया. माने आप लेते रहो, आपके पास जितना भी प्रोडक्ट है. आप पहले इसको लिखो, हम आपको समझा रहे हैं. अच्छा, डूइंग अवे विद द कन्वेंशनल प्राइसिंग, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी have been capping the price of almost every drugs. जो जेनेरिक मेडिसिन है उनको छोड़कर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी लगातार, आप आए दिन न्यूज़पेपर में सुन रहे हो, ये फार्मा प्रोडक्ट या ये मेडिसिन में ये कैपिंग हो गया, इट कैन नॉट बी सोल्ड आफ्टर दिस एट दिस प्राइस. यस और नो? सो ये एनपीपीए ने प्राइस कैपिंग का काम शुरू कर दिया. माने जो चीजें हमने 2002 में मोबिलाइज करी थी उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया. और इनको उल्टा करने के पीछे जो आपने डिमार्केशन लिया है वो 2 है. कैपिंग प्राइसेस 2 चीजों के लिए है. एक तो एथिकल मार्केट सस्टेन करने के लिए फॉर लो कॉस्ट कंपनीज, इसी पर न्यूज आया था अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास. और दूसरा ensuring the demarcation. When I talk about the capping up of the prices, it is ensuring the demarcation that is related to breach. With all due respect, but the medical professionals, you must have experienced that in your life also, that medical practitioners do prescribe up the medicines of which the lower cost substitute is available in the market. Have you encountered that? You and me as patients are consumers not aware of that this formulation is available at lower cost. It has been prescribed to just facilitate certain companies. And those companies in lieu of that is providing expensive gifts to the medical professionals. For the first time in 2012 pharma policy that was given recognition. अब थोड़ा ध्यान से सुनना. 2017 फार्मा पॉलिसी से हम कल पढ़ाई करेंगे. हम स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहे हैं और ध्यान से सुनना हम क्या समझा रहे हैं. इसको समझना बहुत जरूरी है. तो 2017 समझना एकदम 2 मिनट का टास्क रह जाएगा, जिसको हमने पीएलआई के साथ भी एसोसिएट करा हुआ है. तो इट गोज लाइक दिस. When India, with the population explosion, availability of medicines to the commoners, very difficult. IDPL, HL अपना काम तो कर रहा है, लेकिन life-saving drugs, basic immunization, vaccination, there is always the tussle between demand and supply. So comes in 2002 pharmaceutical policy.
2002 pharmaceutical policy was having a compulsion. We wanted private hand with liquidation, with more technology and global competitive growth profile. तो हमने क्या किया, बड़ा progressive policies दे दिया for the private players to come in. And India, otherwise, pharmaceutical sector is human resource based and generic resource based, and India is very rich with that. So automatically it was like people were waiting to get in, and you just opened the door and they just barged in. So revolution तो trigger हुआ, बड़े अच्छी तरीके से हुआ, and India attained whatsoever we have attained. अगर we are the third largest producer of medicines in world today by volume, or we are tagged as pharmacy of world, and we did a leading role when it comes on to the COVID vaccination. So all that has been done because of the 2002. So we cannot undermine that. But 2002 में जितने private players evolve हुए, 2005 में नेशनल फार्मास्यूटिकल अलायंस, ध्यान से सुनना, ओल्डर है, लिखना या रिटेन करना जरूरी है, लिखना शायद जरूरी नहीं है. So National Pharmaceutical Alliance gave us the understanding that all the pharmaceutical giants that have grown because of the progressive policy of India have diluted their stake. अब उस dilution से क्या हो रहा है, रैनबैक्सी को एक्वायर किया था. रैनबैक्सी अब मेजर लिस्ट में नहीं आता, यू नो रैनबैक्सी के सारे कंट्रोवर्सीज. रैनबैक्सी वाज अ वेरी गुड एग्जांपल दैट वाज एक्वायर्ड बाय देची केमिकल्स. उस समय देची केमिकल्स इज अ फार्मास्यूटिकल जायंट ऑफ जापान. देची केमिकल्स ने रैनबैक्सी का 30% स्टेक खरीदा था उस समय जब रैनबैक्सी पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लीगल केसेस चल रहे थे. कोई भी समझदार आदमी अपना पैसा ऐसी कंपनी में तो नहीं लगाएगा जिसमें कहीं कोई लीगल केस चल रहा है. आप सोचो, देची केमिकल्स 30% स्टेक एक्वायर करेगा रैनबैक्सी का, इसका मतलब वो रैनबैक्सी के इंडियन प्रोडक्शन एसेट के 30% का मालिक हो गया. 30% का मालिक हो गया तो जो इंडियन पॉलिसी से रैनबैक्सी को फायदा हुआ, उसका 30% का फायदा अब देची केमिकल्स, वो उस रिसोर्स को, उस बल्क मेडिसिन को, उस फॉर्म्यूलेशन को अपने कन्वेंशनल मार्केट में डाइवर्ट करने का अधिकारी हो गए. इससे इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को क्या गेन हुआ? कुछ भी नहीं. जो रैनबैक्सी ने इन्वेस्ट किया था वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रैनबैक्सी ने जनरेट किया था वही जॉब है. बेनिफिट किसका हो गया? रैनबैक्सी का, जिसने फोर्टिस हॉस्पिटल सेगमेंट खड़ा कर दिया. बेनिफिट किसका हुआ? देची का. लॉस किसका हुआ? इंडियन फार्मास्यूटिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव का. जब इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस ने ये जज किया कि जितने मेजर प्लेयर हैं सब के सब ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब के सब अपना डाइल्यूट कर रहे हैं स्टेक, एंड इट इज एमएनसीज व्हिच आर एंटरिंग लाइक दिस एज अ ब्राउनफील्ड इन्वेस्टर. तो इससे क्या हो रहा है, जितने मेडिसिन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एमएनसीज के कन्वेंशनल मार्केट पर जा रहे हैं. तो हमारे लिए तो हो गई प्रॉब्लम. हमारे लिए तो जो बेसिक फंडा था फार्मास्यूटिकल रेवोल्यूशन का वो तो सॉल्व ही नहीं हुआ. टेक 10 ईयर लीप. आ जाओ 2012 में क्या कर दिया हमने? कंपल्सरी लाइसेंस. अब बहुत ध्यान से सुनना. अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 यूनियन गवर्नमेंट हैज गॉट द राइट टू गिव अथॉरिटी टू द नॉन पेटेंट होल्डर कंपनी to produce the patented drug without the permission of patent holder to be sold in domestic market. लॉजिक समझ में आ गया? आप वो पेटेंट होल्डर ड्रग ए के, यूनियन गवर्नमेंट ने मुझे अथॉरिटी दे दी, प्रोड्यूस करो ड्रग से, आपसे कोई परमिशन देने की मुझे जरूरत नहीं है. I'll not be exporting that drug because you are the patent holder, but I'll be selling it in the domestic market because innovation was not our target, affordability was our target. Have you understood वर्सेस का फर्स्ट पॉइंट? हॉल्ट करना जरूरी था, नहीं तो हमारा फार्मास्यूटिकल रेवोल्यूशन हमारे किसी काम का नहीं रह जाता, कॉर्पोरेट्स के काम का रह जाता. अब सेकंड पॉइंटर को समझो. हमने जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एनकरेज करने के लिए उन्हें प्रोग्रेसिव प्राइस दिया कि डू अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, प्रोग्रेसिव प्राइसिंग, कि भाई जब सीजन चेंज होगा, फ्लू होगा, तो फ्लू के मेडिसिन को हायर प्राइस में बेचे, क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स तो है नहीं. 2002 में आईडीपीएल और एचएएल का डोमिनेंस था लाइफ सेविंग ड्रग्स, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन में, तो इसमें हमें कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं था. हम एनकरेज करना चाहते थे प्राइवेट प्लेयर को, आओ तो आए. अब हमने 10 साल का लीप लेकर एनपीपीए को अथॉरिटी दे दी. हर पासिंग साल एनपीपीए हर किसी मेडिसिन का प्राइस को कैप करता जा रहा है. इस कैपिंग के पीछे क्या रीजन है? बिल्कुल उल्टा क्यों कर रहे हो आप अपने रेवोल्यूशन को? इस कैपिंग के पीछे रीजन नंबर वन है
that when we talk about the big corporates, माने जो बड़े फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स हैं, जिनके पास ज्यादा कैपेसिटी है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, they are basically utilizing that surplus money for the wrong deals. मार्केटिंग ज्यादा करेंगे, जैसे इस इलेक्शंस में हम क्या बोल रहे हैं, all the opposition parties are invisible, पैसा ही नहीं है उनके पास. And when I take up the reference of in the vibrant democracy, every party should be having the similar visibility. बिल्कुल वही वाला लॉजिक अप्लाई करो. You are taking competitive examination training. अच्छा या बुरा नहीं दिखता है, क्योंकि it has been showcased when it comes on to the viral videos or the big banner advertisements, that somewhere can be misleading also. तो जिसके पास एक सरप्लस पैसा है वो अपने आप को ज्यादा विजिबल कर पाता है, और जो जेन्युइनली लो कॉस्ट कंपनी है, जो जेन्युइनली लो कॉस्ट में कोई चीज को प्रोड्यूस कर रही है, वो तो मार्केट से अपने आप ही आउट हो जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू हैव अ कॉम्पिटिटिव फेयर फील्ड प्ले. तो जो एनपीपीए का टारगेट है वो ये है कि जो लो कॉस्ट कंपनीज हैं उनको एक एथिकल एज मिले, कि जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है तो आपका सेलिंग प्राइस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि जो एक सरप्लस इनकम जनरेट हुआ 10 साल में उसको आप कंटेन कर सके. और जो दूसरी चीज उसी के साथ लिखी है वो ये है कि क्योंकि आपने बहुत सरप्लस इनकम जनरेट कर लिया, तो यू आर गोइंग इनटू अनएथिकल प्रैक्टिसेस of ensuring that your medicine, your formulation continues to occupy the market, whereas the cheaper substitutes are available. तो जो cheap substitute बना रहा है उसने अपना profit margin कम रखा हुआ है ना, वो तो अपने आप ही die out हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो visibility नहीं है. कौन visible बना रहा है? मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स ही तो रिकमेंड कर रहे हैं ना, ये लो ये मत लो. इसलिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, भारतीय जन औषधि केंद्र में सारे जेनेरिक मेडिसिन होते हैं. जेनेरिक मेडिसिन वो होते हैं जिसमें कोई कंपनी का ब्रांड. एनपीपीए डोंट कैप द प्राइस ऑफ जेनेरिक मेडिसिन. समझ में आया कि नहीं? तो आपने प्रोग्रेसिव प्राइसिंग को कैपिंग अप ऑफ द प्राइसिंग में कन्वर्ट कर दिया. आपने 20 इयर्स ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट को कंपलसरी लाइसेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपने रेवोल्यूशन को हॉल्ट कर दिया. आप और हम एक प्राइवेट प्लेयर यही तो सोचेंगे क्यों जाकर पेटेंट ले, पेटेंट होने के बाद भी यूनियन गवर्नमेंट तो किसी और को अथॉरिटी दे देगी प्रोड्यूस करने के लिए. सो देयर वाज एन हॉल्टिंग ऑफ द रेवोल्यूशन. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम आए, कुछ समय के लिए कम आए, लेकिन 2017 फार्मा पॉलिसी, बिकॉज इंडिया इज टू डिफिकल्ट as the area of production and market to be ignored by any serious pharmaceutical player. चाहे generic resources की बात करो, चाहे population with the medical facilities as market की बात करो, India is a huge market and production पर भी. यहाँ पर कोई भी serious pharmaceutical player बाहर रह ही नहीं सकता. And benefit क्या हो गया? Benefit हो गया, and it was pharmaceutical policy 2012. FDI 2002, ये थर्ड पॉइंट अर्ली क्लोम ने लिखा नहीं है, तो 2002 फार्मास्यूटिकल पॉलिसी में 100% FDI ऑटोमेटेड. 2012 100% FDI ऑटोमेटेड रूट ओनली फॉर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट विल बी विद द कंट्रोल. स्टेक सेल को हमने कंट्रोल करना शुरू किया. ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट आएगा ना. ग्रीन फील्ड इज बिगिनिंग फ्रॉम स्क्रैच. ब्राउन फील्ड का मतलब होता है यू आर एक्वायरिंग द स्टेक. तो ग्रीन फील्ड में 100% FDI ऑटोमेटेड रूट एप्लीकेबल है 2012 से. और उससे फायदा क्या होता है? नया कैपेसिटी डेवलप होगा, नया जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप होगा. सो ऑल द प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स आर नाउ कमिंग विद 100% FDI ऑटोमेटेड रूट. सो सक्सेस है, पर सक्सेस के साथ जो एक चैलेंज आया उसको हमने अबेट किया 2012 में. और 2017 से जो हमने PLI के साथ, क्योंकि PLI का पहला मोबिलाइजेशन तो 2020 से है, तो 2017 फार्मास्यूटिकल पॉलिसी में क्या क्या चीजें ऐड की गई और उसको हम PLI के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ये वाला सेगमेंट हमारा रह गया. इसको लेकर फिर हम आपको ले जाएंगे टू दी एक फर्टिलाइजर का क्विक मेंशन कर देंगे. फर्टिलाइजर PLI में एप्लीकेबल नहीं है, बट फार्मास्यूटिकल के साथ एक केमिकल सेगमेंट हो जाएगा. देन आई टेक यू टू स्टील. दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग. I think all of us are getting a very evolved and comprehensive approach of learning these topics. इन टॉपिक्स के साथ हमेशा से एक मिथ जुड़ा रहता है, रट्टा मारो. रट्टा मारने से कुछ काम नहीं होता. लॉजिकली अप्लाई करोगे तो सारी चीजें बहुत आराम से याद होती हैं. फैक्ट्स फिगर मेरे आंसर को एनहांस करते हैं.
सिर्फ फैक्ट्स और फिगर आंसर नहीं बनाते कि 2000 करोड़ इन 5 years प्लान। सारे स्टूडेंट लगभग ये लिखने की कोशिश करते हैं अपने जब मेन का आंसर लिखते हैं। प्रीलिम्स में तो वी डोंट गेट सच क्वेश्चंस वेयर यू आर बीइंग आस्क्ड टू consider the following statement and which of them are correct, that how many crores of rupees is likely to be invested, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता।